میں نے راولپنڈی ڈویژن میں ناانصافی کی، 70 ہزار کی لیڈ سے جیتنے والوں کو ہم نے ہروایا۔ راولپنڈی ڈویژن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس۔ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر دیے۔ کہا مجھے راولپنڈی کچہری چوک میں پھانسی دے دینی چاہیے۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا معاملہ، کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا دھاندلی کروانے کا ادعا۔ بولے میں نے راولپنڈی ڈویژن میں ناانصافی کی ہے، 70 ہزار کی لیڈ سے جیتنے والوں کو ہروایا، معافی مانگتا ہوں، سرعام پھانسی دے دی جائے۔ جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے۔ لیاقت علی چٹھا نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے۔ میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ لیاقت علی چٹھا کا کہنا تھا کہ ملک کی پیٹھ میں جو چھرا انہوں نے گھونپا وہ انہیں سونے نہیں دیتا، اپنے ضمیر کا بوجھ اتار رہا ہوں۔ متعلق کمشنر راولپنڈی کے سنگین الزامات الیکشن کمیشن نے سختی سے تردید کر دی۔ واضح کیا کہ الیکشن کمیشن کے کسی عہدیدار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمشنر راولپنڈی کو کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی نوٹس، محسن نقوی نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب نے کمشنر راولپنڈی کو دماغی مریض قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے الزامات کی فوری انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ عام انتخابات کے بعد ہر سو دھاندلی کا شور، کمشنر راولپنڈی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات کی سختی سے تردید کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کسی عہدیدار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمشنر راولپنڈی کو کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ کسی بھی ڈویژن کا کمشنر نہ تو ڈی آر او یا پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے اور نہ ہی الیکشن کے کنڈکٹ میں اس کا کوئی براہ راست کردار ہوتا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن اس معاملے کی جلد از جلد انکوائری کروائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمشنر راولپنڈی کے الزامات کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ انہوں نے الزامات کی انکوائری کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الزامات کی آزادانہ انکوائری کروائی جائے گی۔ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کے حوالے سے حقائق کو سامنے لایا جائے گا۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کمشنر راولپنڈی کو دماغی مریض قرار دے دیا۔ کہا کہ الزامات کا مقصد الیکشن کی ساکھ کو متنازع کرنا ہے۔ ایک شخص جو خودکشی کی بات کر رہا ہے وہ سائیکو ہی ہو سکتا ہے۔ کمشنر راولپنڈی شاید اپنا سیاسی کیریئر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کمشنر راولپنڈی کو اگر کسی نے مجبور کیا تھا تو پولنگ ڈے پر کیوں نہیں کہا؟ شاید انہوں نے کسی کو جتوانے کے لیے پیسے لیے ہوں اور کام نہ کر سکے۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر تحقیقات ہوں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ کمشنر راولپنڈی کے انکشافات پر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں اور ان الزامات کی تحقیقات کر کے حقائق قوم کے سامنے لائے جانے چاہیے۔ پاکستان اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت نئی پارلیمان آ رہی ہے، نئی حکومتیں بننے جا رہی ہیں۔ اسی اسنا میں جو ہے کمشنر راولپنڈی نے چٹھا صاحب نے ایک تلخ خیز انکشافات کیے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات الیکشن کے حوالے سے جس کی ہم چیزیں جمع کر رہے ہیں، اب کمپائل کر رہے ہیں، لیکن آج کمشنر راولپنڈی چٹھا صاحب نے جو ایک تلخ خیز انکشافات کیے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتے حکومت سے کہ فی الفور اس کی تحقیقات کی جائے کہ کمشنر راولپنڈی نے جو باتیں کی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اس میں جو ہے قوم کو آگاہ کرنا چاہیے کہ کیا اس میں کیا سچائی اور کیا جھوٹ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی فوری انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی فوری انکوائری کی جائے۔ راولپنڈی ڈویژن میں الیکشن کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کمشنر راولپنڈی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، نہ صداقت ہے نہ سچائی۔ الزامات لگانا آپ کا حق ہے لیکن ساتھ ثبوت بھی دیں۔ کل کوئی چوری یا قتل کا الزام لگا دیں۔ انتخابات کا مقدمہ ہم نے 12 روز کے اندر نمٹایا۔ ملک کو انتخابات چاہیے تھے۔ میرا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ چیف جسٹس کا الیکشن سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الزامات لگانے والے کے پاس شواہد ہیں تو بتا دیں۔ میری ذات کو چھوڑیں لیکن پاکستان کے اداروں کو تباہ نہ کریں۔ الزام لگا دیں بے بنیاد، نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو، نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو، نہ کوئی ثبوت پیش کریں،
ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, कल मुझ पे कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस न लेने का फैसला कर लिया। फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस के साथ मशावरत के बाद किया गया। ज़राए का कहना है कि पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबात से मुताल्लिक मुकदमे पर समाअत 19 फरवरी को मुकर्रर है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का मामला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बदनीयती पर मबनी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे को बेतुकीरी करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुलविस होने के बारे में बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक कोई किरदार नहीं है। एलामिया में मज़ीद कहा गया कि इंतखाबी अमल इलेक्शन कमीशन का इंतज़ामी मामला है। इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की इंक्वायरी करे। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास 10 बजे तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा। अहम इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक होंगे, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीक नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास 10 बजे तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा। अहम इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक होंगे, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीक नहीं होंगे। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात का मामला। लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ मुकदमे के लिए थाना सिविल लाइन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त अरसलान अहमद एडवोकेट और ज़ेब फयाज एडवोकेट की तरफ से दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी, फ्रॉड और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया जाए। मरकज़ी तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कमिश्नर के खिलाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने इल्ज़ामात लगाने के बजाय सबूत रखने का कहा। 8 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा है। कमिश्नर ना आर ओ होता है ना DRO होता है। इलेक्शन करवाना ROs और DROs की जिम्मेदारी है। नून लीग की तरफ से मुतालबा है कि कमिश्नर साहब की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की कोई हैसियत नहीं, नाम ECL में डाला जाए। कमिश्नर जो होता है वो ना RO होता है और ना वो DRO होता है, और इलेक्शन कंडक्ट करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, इंतज़ामिया जिसको बोलते हैं, वो RO और उसके ऊपर DRO। बात यह है, और कमिश्नर साहब के पास कोई आईनी जिम्मेदारी या कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता जो उनको एक्सेस दे इलेक्शन के रिज़ल्ट को कंपाइल करने को या इलेक्शन की एग्जीक्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन को। जो उन्होंने बयान दिया कि रावलपिंडी डिवीज़न के जितने लोग जीते हैं सिवाय एक के, जहां PTI जीती है, वो रिज़ल्ट ठीक है। बाकी पिंडी डिवीज़न के जितने रिज़ल्ट्स हैं जहां PTI हारी है, वहां 50-50 हज़ार की लीड देकर कैंडिडेट्स को जितवाया गया है। जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी कहती हैं, मुल्क नाजुक मरहले से गुजर रहा है, चाहते हैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। चाहे बिलावल हाउस कराची में जाम खान शोर महेश मिलानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाजिया तमरी का कहना था, इलेक्शन नताइज में हमें भी एतराज है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को बचाया है और बचाना चाहेंगे। बलूचिस्तान और सिंध में जो हमारे साथ हुआ, हमने इस पर बहस की। पाकिस्तान में मुल्क की यकजहती के लिए काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान नाजुक मरहले से गुजर रहा है। कुछ मामलात मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से जो है वो हसास है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो मजबूत हो या वो बढ़े। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल हो। शाजिया मरी का कहना था, पाकिस्तान आज नाजुक मरहले से गुजर रहा है, नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो। विफाक और सूबों में हुकूमत साजी को आगे बढ़ना चाहिए। जो हुकूमत साजी का अमल है उसको भी आगे जाना चाहिए, और इस वक्त पार्लियामेंट का क़याम बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट जहां अवाम के मसाइल डिस्कस होंगे, जहां आज की तारीख़ी महंगाई, बेरोज़गारी और बढ़ती हुई गुर्बत पर बात हो, और किस तरीके से आप अवाम के इन मसाइल को एड्रेस करें
ताकि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिल सके। इस मौके पर जाम खान शोरो का कहना था GDA प्री इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आई। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी पूरे मुल्क में इलेक्शन मुहिम चलाते रहे, जबकि मुखालिफिन घरों से नहीं निकल रहे थे। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज, कराची। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले। रावलपिंडी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को ओहदे से हटा दिया गया है। DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। आपको आगाह करते चलें, DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। सुहेल राजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े तबादले किए गए हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को ओहदे से हटा दिया गया है। DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज दिया गया है। इससे पहले DG RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा RDA की जिम्मेदारियां भी संभाल रखे थे, जबकि उनको इजाफी चार्ज भी दिया गया है। इसके साथ साबिक कमिश्नर है लियाकत अली चट्टा, उनको लोअर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पंजाब जो है वो रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इस तरह कमिश्नर रावलपिंडी को ओहदे से हटाया क्योंकि दोपहर के वक्त उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इंतखाबी नताइज में धांधली के हवाले से उन्होंने इल्जाम आयद किए थे। अब DG RDA को इजाफी चार्ज, कमिश्नर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। जी सुहेल, आप हमें तफसीलात से आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। हालिया इंतखाबात से मुतालिक इल्ज़ामात निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अहम बयान सामने आ गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतशार फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पुरअमन एहतजाज सबका हक, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत साजी का अमल बाहमी अफ़हाम और तफ़हीम और एहतराम के साथ जल्द अज जल्द इख्तिताम पजीर होगा। आम इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हालिया इंतखाबात जमहूरियत के फ़रोग़ की तरफ एक अहम कदम है। नुमाया टर्नआउट को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतालिक इब्हाम रखने वाले मुतालिका प्लेटफॉर्म से रुजू करें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हुकूक हैं, लेकिन किसी भी किस्म की तहरीक और तशद्दुद पर उकसाने को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। कानून बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतालिक पाकिस्तान की मुकन्नना और अदलिया गैर जानिबदाराना इंसाफ की फराहमी के लिए मुतहरिक हैं। इन्होंने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत सब्र और तहम्मुल की दरख्वास्त करती है। उम्मीद है हुकूमत साजी का अमल अफ़हाम और तफ़हीम से जल्द मुकम्मल होगा। पुरतशद्दुद एहतजाज से अमन और अमान की संगीन चैलेंजेस पैदा होते हैं। ये सिर्फ दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। हुकूमत साजी का मामला। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की बैठक। रहनुमाओं ने मशावरत के लिए पीर को मजीद बैठने का फैसला किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास हुआ, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में दोनों इतराफ की जानिब से दी गई तजावीज़ पर तफसीली गुफ्तगू हुई और मामलात पर काफ़ी पेशरफ्त हुई। दोनों फरीकैन ने मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद सिफारिशात के लिए बरोज़ पीर दोबारा बैठने का फैसला किया है। कमेटी अरकान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक मजबूत जमहूरी हुकूमत ही मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी सेनेटर इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ्द सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सैयद गनी, नदीम अफजल चंद, नवाब सना, सनाउल्लाह जहरा और शुजा खान और सरदार बहादुर खान पर मुश्तमिल था। PTI ने जल्द इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। फैसला बानी PTI की हिदायत पर किया गया। PTI पार्लिमानी पार्टी के दूसरे इजलास में हुकूमत साजी, कमिश्नर रावलपिंडी के बयान, कारकुनों की गिरफ्तारी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऑन शिराजी की रिपोर्ट देखिए। PTI की पार्लिमानी पार्टी का दूसरा इजलास आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, लतीफ़ खोसा समेत उमर न्याजी, जमशेद दस्ती, सनाउल्लाह मस्तीखेल ने शिरकत की। इजलास में PTI की पार्लिमानी सियासत की हिकमत अमली, इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्तों पर भी तबादला ख्याल किया गया। पार्लिमानी इजलास में PTI की एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली और कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान का कहना था कि हमारी जीती हुई सीटें हमें वापस किए जाएं। PTI जल्द इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएगी कि अवाम को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए। हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे और अगर अवाम का मैंडेट चुराया जाएगा तो ये
आईन के खिलाफ सख्त वार करने वाली बात है। कल इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी है कि आप जाके इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी करवाएं। लतीफ खोसा के इजलास के बाद नून लीग पर सख्त तनकीद, बोले ये लोग बड़ी ढिठाई से मरियम नवाज को वज़ीर आला बना रहे हैं। आपने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, अवाम आपको कभी माफ नहीं करेगी। पहले तो माशाअल्लाह जो ताजपोशी के लिए लाए गए थे, जो बड़ी ढिठाई से वज़ीर आज़म अपने भाई को नामज़द करते हैं और अपने बेटी को जो है वज़ीर आला नामज़द करते हैं, लेकिन अब आपने मैंडेट चुराना भी शुरू कर दिया और चौथी मर्तबा, तो ये कौम अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। बैरिस्टर उमैर न्याजी, आमिर डोगर और सनाउल्लाह मस्तीखेल ने भी जीती हुई सीटें वापस लेने का मुतालिबा दोहरा दिया। PTI के वफाक में किसी सियासी जमात में शमूलियत से मुतालिक फैसला आज मुतवक्के। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर के मुताबिक आज़ाद हैसियत में मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की जानिब से कहा गया है कि कौन सी पार्टी में शमूलियत करनी है आज हतमी फैसला हो जाएगा। पार्टी ज्वाइन करने से मुतालिक आज ऐलान करेंगे। कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर सियासी जमातों का एहतजाज खत्म होने के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। मजीद जानते हैं शाहिद एजाज से। जी शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर जो है ऑफिस के बाहर आज 2 सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज किया गया था। बाकायदा यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद में मौजूद थी, लेकिन इस वक्त जो है तमाम यहाँ के जो रोड हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। बाकायदा तौर पर ख़ासदार तारे लगा के इलेक्शन कमीशन ऑफिस के गेट को बिल्कुल सील किया हुआ है, बंद किया हुआ है। और दूसरी जानिब जो है यहाँ पर पुलिस की नफरी भी मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन फैजान दिखा सकता है आपको, पुलिस की नफरी यहाँ मौजूद है। इलेक्शन ऑफिस के पूरे रास्ते को बंद किया हुआ है। एक रास्ता खाली छोटा सा इन्होंने आने जाने के लिए यहाँ पे छोड़ा हुआ। बाकायदा तौर पे यहाँ पर सियासी जमातों की जानिब से जब एहतजाज किया जा रहा था, बाकायदा तौर पे यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर मौजूद थी। किसी को अंदर जाने की, अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। यहाँ पर दरवाजे के बाद पुलिस तैनात थी, किसी भी यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। अब यहाँ पर जब एहतजाज हुआ, ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाखान अब्बासी ने कहा है कि ये अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी हैरान था कि रिजल्ट क्या है। मौजूदा इंतखाबात में फॉर्म 47 फॉर्म 45 से जीत गया। ये भी अनोखी बात है कि आज कोई इक़्तिदार में आने के लिए ख्वाहिश नहीं रखता। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब ने PDM को अलविदा कहा है। यही कहूँगा कि जो 47 है वो जीत गया है, 45 हार गया है। और ये इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि 47 पहले बन गया था, 45 बाद में आए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, लेकिन मैं ज़रूर ये कहता रहा कि इलेक्शन अगर आपने बगैर आगे के रास्ते का तयन किए इलेक्शन कराए, वो कुछ नहीं देंगे, इंतशार देंगे। और कम से कम वो बात जो है वो हकीकत साबित हुई है। आज कोई भी इक़्तिदार का मुस्तहिक नहीं है और सब जानते हैं। अपना ज़मीर टटोलें, आपको नज़र आएगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। तो आज मसला मुल्क का है, मुल्क के मसाइल की बात करें तो ये भी अनोखी बात है कि मुल्क में कोई भी इक़्तिदार में आने की अब अपने आप को लायक नहीं समझता। इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। परवेज़ खट्टर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। PTIP के नए चेयरमैन की तैनाती तक महमूद खान बतौर कायम मकाम चेयरमैन जिम्मेदारियां निभाएंगे, जबकि महमूद खान की पार्टी के अमूर भी चलाएंगे। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने अपने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक मरकजी मजलिस शूरा ने मुतफ़िक़ा तौर पर सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। मजलिस शूरा ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। अमीर जमात दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कैसर शरीफ का कहना था कि इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की नहीं, धांधली की वजह से हुई है। इस्लामाबाद में अलबसीरा पाकिस्तान के ज़ेर तमाम उम्मत इस्लामिया की शराज़ा बंदी के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुक़र्रीरीन का कहना था कि दुश्मन साजिशों में मसरूफ़ है, हमें मुत्तहिद होकर इन साजिशों को नाकाम बनाना है। मरहूम सैयद साक़िब अकबर इत्तेहाद उम्मत के दाई थे। अलमदार बलूच की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के मकामी होटल में अलबसीरा पाकिस्तान के ज़ेर तमाम मरहूम दाई इत्तेहाद उम्मत सैयद साक़िब अकबर की बरसी के मौके पर उम्मत इस्लामिया की शराज़ा बंदी के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम समेत अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उलमाए कराम का कहना था कि इत्तेहाद उम्मत वक्त की ज़रूरत है, मिलकर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। मरहूम सैयद साक़िब अकबर की इत्तेहाद उम्मत के लिए काफ़िशें नाकाबिले फरामोश हैं। दुश्मन की स्ट्रेटजी है तफरका, काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? वहदत, शिया और सुन्नी की वहदत। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जो
ہمارے درمیان سے اٹھ گئی ہے اور ان کی کمی جو ہے پوری نہیں ہو سکتی. وہ بہت بڑی شخصیت سے ہم محروم ہو گئے ہیں. ہمیشہ انہوں نے جد و جہد کی تاکہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و وحدت قائم کریں. آپ نہایت اعلیٰ اخلاق اور خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت تھے. جس طرح سید ثاقب اکبر سے لوگ زندگی میں محبت کرتے تھے اسی طرح آج بھی ان سے محبت کرتے. اسے کہتے ہیں کامیاب انسان. ثاقب اکبر صاحب سے ہم نے اعتدال سیکھا. میں انہیں اپنا استاد سمجھتا ہوں اور آخر دم تک انہوں نے علماء اور طلباء کے ساتھ جو رابطہ رکھا، جو خدمت کی، وہ آج بھی قابل قدر ہے. آپ علماء سے، مشائخ سے ملاقات کرتے تھے، ان سے ملتے تھے، ہر کوئی ان کو اپنا محسوس کرتا تھا. شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ سید ثاقب اکبر ایک ادیب، محقق، شاعر اور مصنف بھی تھے. کیمرہ مین عباس اصغر کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز اسلام آباد. بس بہت تماشا بن گیا. اب یہ وطن عزیز مزید صدمے برداشت نہیں کر سکتا. شاہد آفریدی کا ملکی صورتحال پر پیغام. کہا خدا را اپنی آنے والی نسلوں اور اپنے ملک کے لیے سب ایک ہو جائیں. قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ عام آدمی ہر روز کی ایک نئی کہانی سے تنگ آ گیا ہے. اس کا مسئلہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے. فیصلہ سازوں سے ہاتھ جوڑ کر التماس ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر ملک کو اس ہیجانی کیفیت سے نکالیں. برف پوش پہاڑوں کے دامن میں ایک دلچسپ کھیل کا میلہ. NLC کے تعاون سے وادی پھنڈر میں آئس ہاکی کا انعقاد کیا گیا. غزر آئس بیگز ٹیم نے پھنڈر آئس بیگز کو 0-2 سے شکست دے کر آئس ہاکی ٹرافی اپنے نام کر لی. برفیلی وادیوں کے دامن میں آئس ہاکی کا لگا میلہ. نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے توسط سے منعقد کیا جانے والا 2 روزہ پھنڈر سرمائی آئس ہاکی ٹورنامنٹ اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ اختتام کو پہنچ گیا. خواتین کے مقابلوں میں پھنڈر آئی بیگز نے یاسین جانباز کو 0 سے شکست دے کر فتح حاصل کی. روایتی کھیلوں کو فروغ دینے کے سلسلے میں NLC نے مقامی تنظیموں کے تعاون سے گلگت بلتستان کے ضلع خضر کی خوبصورت وادی پھنڈر میں سرمائی کھیلوں کے 3 ایڈیشن کا انعقاد کیا. ٹورنامنٹ کا سب سے اہم پہلو خواتین کی شمولیت تھی. گلگت کے روایتی رقص نے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے. شہریوں نے سرد موسم کے باوجود خوب انجوائے کیا. چین کے نئے سال کی مناسبت سے پشاور میں قائم چینی ثقافتی مرکز چائنا ونڈو نے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا. اویس محمود کی رپورٹ دیکھیے. پشاور میں قائم چینی ثقافتی مرکز چائنا ونڈو میں چین کے نئے سال کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں بے نظیر وومن یونیورسٹی کے طلبات نے پینٹنگ کے ذریعے چینی ثقافت کو اجاگر کیا. صرف ہی فیسٹیول منانے کا نہیں بلکہ ہمیں چائنیز جو ان کے جو ثقافت ہے، رنگ و روپ ہے، ان کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. یہاں پہ میں نے جو چائنیز ثقافت کی تصویریں دیکھی اور جو ان کی بنی ہوئی ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں اور ڈریسز دیکھے تو بہت ہی زیادہ میں اس سے متاثر ہوئی ہوں کیونکہ یہ ثقافت بہت پرانی ثقافت ہے چائنیز. تقریب کے مہمان خصوصی چیمبر آف کامرس کے صدر فواد اسحاق کا کہنا تھا کہ پہاڑوں سے اونچی اور سمندر سے گہری پاک چین دوستی بے مثال ہے. یہ ایئر آف دا ڈریگن ہے جو کہ خوشحالی اور امن کے سال کا نشان ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پراسپیرٹی جانبین چائنا اور پاکستان جو دونوں برادر ممالک ہیں ان سب کے عوام کے لیے خوشحالی کا، امن کا اور ترقی کا پیغام لائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بغیر لکھت کے ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو کہ پاکستان اور چائنا کے وجود کے بعد سے اٹوٹ رشتوں میں مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. تقریب میں موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. رباب کی خوبصورت دھن نے محفل کو 4 چاند لگا دیے. کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ اویس محمود، سچ نیوز، پشاور. اسی کے ساتھ ہی سچ کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے سچ TV.pk اور دیکھتے رہیے سچ نیوز.